Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of judicial examination. So, today's point of discussion is the definition of cognizable and non-cognizable offense, which is discussed under a Criminal Procedure Code 1973. So under this particular topic we will discuss what is mean by cognizable offense and what is mean by non-cognizable offense with expected question which is being asked by the examiner in the prelim examination, as well as we will discuss the question which has already been asked by the examiner in the previous एग्जामिनेशन. तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कॉग्निजेबल ऑफेंस की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में उसके इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर ने, वो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन. तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. Definition of cognizable and non-cognizable offense. Cognizable offense is defined under section 2 subclause C of Criminal Procedure Code 1973. So as per the definition of cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without warrant. So the case is known as a cognizable offense in which police is having a power to arrest the accused without warrant. There is no need to obtain a warrant from the magistrate. तो cognizable offense ऐसे offense है या cognizable case ऐसी case है जिस केस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है accused को. The offenses which are a serious one is known as a cognizable offense. जो फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताए हुए हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेंगे, और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को. सो पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. पुलिस ऑफिसर मे इन्वेस्टिगेट द मैटर Police officer may investigate the matter without order of magistrate. So cognizable offense में पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर cognizable offense में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है. He can start the investigation even without the order of magistrate. So the question being asked by the examiner on cognizable offense in 2019 महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन JMFC में क्वेश्चन पूछा गया है. Cognizable offense means an offense in which a police officer may arrest without warrant, B, which may be investigated by police without order of magistrate, in which police cannot grant bail, and D1 is cognizance of which can be taken by magistrate upon police report only. Choose correct option in respect of the above statement. So A and B is there, B and C is there, C and D is there, and A and D is there. So now definition says that cognizable offense means an offense for which a cognizable case means a case in which a police officer may, जो रेड में लिखा हुआ दिख रहा है अरेस्ट विदाउट वारंट, तो अरेस्ट विदाउट वारंट है. ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट वन. ए एंड बी, ए में बताया हुआ है इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. और बी में बताया हुआ है विच मे बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है मैटर को. इन विच पुलिस कैन नॉट ग्रांट बेल. कॉग्निजेबल ऑफिस में डेफिनेशन में ये वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है. कॉग्निजेंस ऑफ विच कैन बी टेकन बाय मैजिस्ट्रेट अपॉन पुलिस रिपोर्ट, ये भी कुछ वर्ड कहीं पर यूज नहीं किए हुआ है. तो ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. सो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर. नाउ महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन JMFC 2017 और 2014 और 2010 ये तीनों एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स. ऑप्शन ए, a serious offense,
offense in which police officer may arrest without warrant. Third one is session tribal offense and the fourth one is none of the above. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि cognizable offense means an offense for which a cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without warrant. तो option 2 is a correct one. Offense in which police officer may arrest without warrant. तो cognizable offense ऐसे offense है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. तो ये जो cognizable offense की डेफिनेशन है, जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और वेरी शॉर्ट है. इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसी केस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है और ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ये दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है. तो आपको आसानी से इसके मार्क मिलेंगे. तो 2C में इसकी डेफिनेशन बताई हुई है. अब प्रोबेबल क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइंस द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस. कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को? सो ऑप्शन 2C इज अ करेक्ट वन. So 2C is a correct one. तो defined under section 2C. तो 2C में डेफिनेशन बताई हुई है और 2A में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, दूसरी डेफिनेशन थी. 2B में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है. तो नाउ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स A case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. ऐसी केस जिसमें पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है, ऐसी केस को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे. एंड द डेफिनेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेंशन अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज L. इसमें डेफिनेशन बताई हुई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की. सो पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. इफ द अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट. तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस द पुलिस ऑफिसर रिसीव्ड अ वारंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. देन for investigation, prior permission of magistrate is required. Suppose if the accused has committed a non-cognizable offense, police cannot start the investigation suo motu until and unless police received a prior permission from the court. They cannot start the investigation. तो कोर्ट की जब तक परमिशन नहीं आएगी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर खुद से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है. प्रोबेबल महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में जेएमएफसी के. क्वेश्चन ये था कि पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कब इन्वेस्टिगेट कर सकती है? ऑप्शन इज देयर. फर्स्ट वन इज विथ परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, विथ परमिशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड नन ऑफ द अबोव. सो द करेक्ट आंसर इज दैट. यहां पर स्पेसिफिक बताया हुआ है, अगर आपने रेड फॉन्ट में अगर दिख रहा है, हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, के पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट कर ही नहीं सकती. सो विथ परमिशन ऑफ कोर्ट इज अ करेक्ट आंसर. तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के परमिशन के चलते इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, ना तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के चलते इन्वेस्टिगेट कर सकती है. उसको क्या करना पड़ेगा? With the permission of court only the police can investigate the non-cognizable case. So non-cognizable case में कोर्ट की जब तक परमिशन नहीं आती मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता. Probable question is that which section of criminal procedure code 1973 defines the term non-cognizable offense? So section 2C, section 2E, section 2L. So section 2L is a correct answer. So section 2L of criminal procedure code defines the term non-cognizable offense. तो non-cognizable offense यहाँ पर define करे वाला है. So points to be remember, cognizable offense define किया हुआ है section 2 subclause C में, and in a cognizable offense police can investigate without order of magistrate. Magistrate का order के बगैर investigate कर सकता है, and police can arrest the accused without warrant. Then non-cognizable offense means defined under section 2L of criminal procedure code and investigate with order of magistrate. The police can investigate the non-cognizable offense
विथ ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आएगा पुलिस नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। एंड पुलिस कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विथ वारंट, जब तक वारंट नहीं मिलेगा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। सो दिस इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड प्रोबेबल क्वेश्चन. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.